Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमने माउथ, टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ इन सब के बारे में पढ़ा. Then we have also studied the salivary glands, the function of salivary glands. Now, today in this video, I am going to talk about esophagus and stomach. So, get ready with your paper and pen and let's start. Students, esophagus क्या है? It is also known as gullet. 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 And it is a muscular tube. एक ट्यूब है जो कि मसल से बना हुआ है completely. Okay? So, ये muscular tube हमारा कहाँ से शुरू होएगा? It will start from the mouth till the stomach. Okay? The only function of esophagus is to carry the food from the mouth to the stomach. So, where is this esophagus located? This is located in our chest, okay? And behind the windpipe, that is the trachea, and in front of the backbone. It passes through the diaphragm. So, students, you can see in this image, where is this esophagus coming from? From the mouth till the stomach, okay? And where it is located behind the trachea. And किसके आगे है ये? अपने backbone के front में रहेगा. It will pass through the diaphragm, okay? Diaphragm के through pass होते हुए ये stomach तक पहुँचता है. As I told you before also, the only function is conducting the food, that is passing the food from the throat to the stomach. So it is not going to produce any of the digestive enzymes. The important thing that we need to learn about is the special movement it is doing. That special movement is called as peristalsis. So let's see what is peristalsis. So what is peristalsis? Peristalsis is an involuntary reflex action. It is a wave-like motion that will propel the content, that is a food, along the tube. With the help of this wavy movement, जो हमारा खाना रहता है वो आगे की तरफ मूव करता है. Remember, it is an involuntary reflex action. Okay, it is not under our control. It keeps on going in our body. In the tube, that is the esophagus, there is a wave of constriction which is caused by the circular muscles of the gut. Why this constriction is needed? This constriction is needed, the waves is needed. The peristalsis is important to push the food along the path of the alimentary canal. And remember, this peristalsis is going to continue throughout all the regions of the gut. ऐसा नहीं है सिर्फ ईसोफेगस में होगा, आगे भी ये पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कंटिन्यू होएगा. सो पेरिस्टालिसिस तो हमारा कौन कर रहा है? जो सर्कुलर मसल्स हैं गट की, वो हेल्प कर रही है पेरिस्टालिसिस करने के लिए. उसके अलावा म्यूकस इज सिक्रीटेड बाय ऑल द रीजन्स ऑफ द गट. एंड व्हाट इज म्यूकस? एक स्लिमी फ्लूइड है, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? फूड हमारा लुब्रिकेट हो जाता है, गिल्ला हो जाता है, लुब्रिकेट होता है, जिसकी वजह से वो ईजिली आगे पुश फॉरवर्ड हो सकता है. ओके, so this is all we should know about esophagus. Now let's go to the next part of the alimentary canal, that is stomach. So stomach is a elastic bag, okay? It is like an elastic bag. Why we are calling it an elastic bag? Because it is stretchy, okay? Stretchable है. एक muscular organ है जो कि expand होता है ताकि उसमें food आ सके. Okay? It have reflexes also. And it expands when the food is entering into it. And if we talk about an average adult, the stomach of an average adult can hold 2 to 3 liters of food in it. Like we said, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं टेक प्लेस होता है, राइट? इसमें कोई एंजाइम रिलीज नहीं होती है. लेकिन स्टमक क्या करता है? स्टमक में वो खाना रोक के रखना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है, सो दैट डिफरेंट एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट, डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस कैन एक्ट ऑन इट एंड हेल्प इन डाइजेशन. These digestive enzymes or the juices, the digestive juices are secreted by the inner lining of the stomach. Now let's talk about the anatomy of a stomach.
एनाटॉमी मतलब वो कैसा स्ट्रक्चर में दिखता है. तो स्टमक, दिस इज यू कैन सी इज एन इमेज ऑफ स्टमक. इट इज अ J shaped muscular organ. We can divide stomach into 5 sections: the cardia, fundus, body, antrum and pylorus. The cardia is the top part, fundus is rounded and below the diaphragm. The body is the largest section and the antrum holds the food and the pylorus is the bottom part. In both cardiac part and the pylorus part, you can find rings of muscles that are called as sphincter. Okay, it's just like a gatekeeper. They prevent the backflow of the food. What does it mean? मतलब पेट में जो खाना नीचे आया है उससे वो वापस ईसोफेगस पे ना जाए. ओके, तो कार्डियक की जो हमारे स्पिंचर है, जो ये कार्डिया हम बोल रहे हैं, कार्डियक स्पिंचर, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? स्टार्टिंग ऑफ द स्टमक, द फ्रंट एंड ऑफ द स्टमक. यहाँ पे जो ये मसल्स प्रेजेंट है, जो रिंग वाली मसल्स प्रेजेंट है, द कार्डियक स्पिंचर, इट विल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक टू द ईसोफेगस. ओके, एक बार जो खाना नीचे आ गया स्टमक में, वो तो डाइजेस्ट होएगा. अभी वो ऊपर ना जाए, इसके लिए ये स्पिंचर्स एज अ गेटकीपर काम करती हैं. इनमें वाल्व होते हैं जिसकी वजह से वो उसको क्लोज कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फूड है ईसोफेगस से एक बार डाइजेस्टिव ट्रैक में आ गया, मतलब हमारे स्टमक में आ गया, तो वो वापस ईसोफेगस में नहीं जा पाता है. सिमिलरली एट द एंड ऑफ द स्टमक, ओके, जो पाइलोरस है, जहाँ पे हमारा स्टमक ओपन होएगा इंटेस्टाइन में, दैट पार्ट इज पाइलोरस. ओके, सो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? रिंग ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, जिनको हम स्पिंचर कहते हैं. वो भी एज अ गेट कीपर काम करती हैं. और एक बार खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होके, स्टमक में डाइजेस्ट होके नीचे चले जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो वापस ना आए, इसलिए यहाँ की जो स्पिंचर्स है गेट कीपर का काम करती है और इस जगह को क्लोज कर देती है टाइम टू टाइम. लेकिन बच्चों, कभी कभी हमारा खाना स्टमक से वापस ईसोफेगस, क्या कभी कभी मुंह से भी बाहर निकल जाता है. यस, व्हेन द स्टमक इज अपसेट, वॉमिटिंग होती है ना, तो वॉमिटिंग में क्या हो रहा है, जो स्टमक में जो खाना था, जो कि ईसोफेगस ने स्टमक में पहुंचाया था, लेकिन क्योंकि स्टमक या तो ओवरलोडेड है, डिस्टर्ब्ड है, मतलब अपसेट है हमारा स्टमक. ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है, वॉमिट हो जाता है. तब क्या होता है, ये जो कार्डियक स्पिंचर है ये ओपन हो जाती है और जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस होता है हमारा, नॉर्मली किस डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. जीआई ट्रैक में कैसा होता है हमारा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट? टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे की तरफ होता है. लेकिन जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है ड्यूरिंग द वॉमिटिंग क्या होता है, एक रिवर्स वेव होती है, उल्टा वेव चलती है. इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एंटी पेरिस्टालिसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार खाना जो कंटेंट रहता है फूड का come out through the mouth. Vomiting is caused due to the anti-peristalsis movement, and during this the cardiac sphincter will open and a reverse wave of muscular contractions is caused, throwing the contents out through the mouth. Now this was about the anatomy, okay, the structure of the अपना stomach. Now we will going to talk about the physiology. उसका काम क्या है, उसके functions क्या हैं. सो एज वी सेड कि वहाँ पे डाइजेशन टेक प्लेस होएगा. सो उसके लिए क्या चाहिए, हमें जूसेस चाहिए. अभी जो हमारा स्टमक है, जो जूस सिक्रीट करेगा उसको हम बोल देंगे गैस्ट्रिक जूस. ओके, क्या बोलेंगे उस जूस को? गैस्ट्रिक जूस, विच इज सिक्रीटेड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. So the gastric juice is a digestive fluid which is produced in the stomach. It will contain hydrochloric acid. Yes, it is highly acidic. It will also contain some salts, some digestive enzymes as well as mucus. And usually gastric juice is colorless. Just now as I said, gastric juice क्या रहेगा, highly acidic liquid है. तो ये एसिडिक क्यों है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एसिड? दिस एसिड विल सर्व टू फंक्शन. सबसे पहला तो खाने के साथ में अगर कोई जर्म्स हमारे साथ में गया है खाने के, तो वो किल हो जाता है. और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को.
पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है. व्हाट इज पेप्सिनोजन? पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम पेप्सिन. जो एंजाइम पेप्सिन है उसका इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन. तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर देता है. ओके, तो एक्टिवेट करके क्या होगा, वो एक्टिवेट जब हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे पेप्सिन में. और पेप्सिन ही वो एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन में एक्ट करेगा और डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को. किस में कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन्स को? पेप्टाइड में. एंड दीज पेप्टाइड्स आर यूज्ड बाय बॉडी इन मैनी वेज. सो ये तो हो गया पहला कन्वर्शन HCl ने जो किया. अभी दूसरा और क्या एक्टिव करता है ये प्रोरेनिन को भी एक्टिवेट कर देता है. HCl एक्टिवेट द इनएक्टिव प्रोरेनिन and convert it into renin, that is the active form. और अभी ये जो रेनिन है वो केसिन, जो कि एक मिल्क प्रोटीन है. ओके, मिल्क प्रोटीन का नाम है केसिन. इस केसिन को कन्वर्ट कर देगा पैराकेसिन में, जो कि एक पेप्टाइड है. ओके, कौन कन्वर्ट कर रहा है? रेनिन कन्वर्ट कर रहा है. आई रिपीट, प्रोरेनिन जो कि इनएक्टिव स्टेट में है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू रेनिन विच इज एन एक्टिव state with the help of HCl, and this renin will convert the casein, which is the milk protein, into paracasein, a peptide. Students, very important and interesting fact, renin is an enzyme which is produced in human kids only. Okay, and the production of this renin enzyme is only till by the age of 3. And after 3 there is no renin enzyme present in human body. तो रेनिन जो एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कर रही है मिल्क प्रोटीन केसिन को पैराकेसिन में, वो सिर्फ हमें बच्चों में प्रेजेंट मिलेगी. ओके, सिर्फ बच्चों का जो स्टमक है वो रेनिन एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा ताकि बच्चा क्या कर सके, मिल्क को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, उसका प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके. इसलिए ये एंजाइम सिर्फ बच्चों में रहती है 3 साल तक की उम्र तक. उसके बाद दिस एंजाइम इज़ रिप्लेस्ड बाय पेप्सिन. सो बाद में जो मिल्क प्रोटीन है केसिन, उसको कन्वर्ट करने का काम भी पेप्सिन करेगा, लेकिन बच्चों में ये काम रेनिन एंजाइम करती है. ओके, HCl सब में प्रोड्यूस होएगा. ठीक है, HCl जो एसिड है वो गैस्ट्रिक जूस में सब में प्रेजेंट रहेगा, जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा और जो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल दिस एंजाइम्स एंड द गैस्ट्रिक जूस पार्ट इज क्लियर टू ऑल. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क योर डाउट इन द कॉमेंट सेक्शन. तो बच्चों, ये सारा डाइजेशन होने के लिए, स्पेशली जो प्रोटीन्स है उनको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम चाहिए. तो कम से कम 3 घंटे हमारा जो खाना हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में रहता है. सो आफ्टर पार्शियल डाइजेशन ऑफ द फूड, अभी जो हमारे पास बना है, जो बचा है, उसको हम बोलेंगे काइम. काइम क्या है? एक थिक सेमी फ्लूइड मास है. किसका? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड का. ओके, जो कि अभी स्टमक में फॉर्म हो गया. अभी ये आगे फॉरवर्ड मूव करेगा इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. कैसे मूव करेगा? जो एंड पार्ट है स्टमक का, पाइलोरस हमने बोला, उसमें क्या है? रिंग मसल्स प्रेजेंट है, स्पिंचर प्रेजेंट है. सो इंटरमिटेंटली दे आर गोइंग टू ओपन and they will allow the chyme to move to the intestine थोड़ा 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 करके. ओके, तो हमारा partially digested food chyme अभी small intestine में चला गया. ओके students, I hope you have understood how esophagus is working and what all digestion are taking place in stomach. That's all for today. We will continue this chapter in my next video. Till then, stay tuned, keep studying, and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Thanks for watching.